Hi everyone. So this is the another series of NCERT history because it is very important parallelly when you are doing advanced history from ancient, which the series which I have started in the different playlist, but it is very important here. I will cover history NCERTs and most probably every class. Just this is class 6th. Okay, so most probably I will try to complete the NCERT 1 hour for each class, so that once you will see these, there are some terminologies which is really important and you can go through the details, and then you will get to know about uh, what is different terminologies used in NCERTs, like inscription, like prashasti, or there are different stupas and paintings and different other uh, architecture also. So they will help you to understand about these terminologies, and what about different kind of terminologies which is used in history NCERTs. Then only once you will go to the textbooks and standard books, you will be really comfortable to understand these terminologies, and you can explain in your mains and prelims both. So that's very important. And I think you should start from 6th class. So there are few chapters which is on the advanced level. You will learn in class 6, 6th class, 7th class, 8th, 9th, 10th and 12th. So this is how it is a foundation thing you need to build, and it will take hardly 1 hour to complete in NCERT class 6. After that you will complete 7th, 8th, 9th and 10th. Most probably you will compile this in 4 to 5 hours, and then you can jump in the advanced books. That will help you to understand these terminologies which will going to introduce in new standard books. So let's start from 6th class NTRT, and this is from chapter 1 to 5. There are different terminologies you will get to know. So it is in history, it is an adventurous journey. I can say I always call it as an adventurous journey, where there is no road, no technology. It was like a barter system, provide the knowledge of early men, बिकॉज एंशियंट हिस्ट्री में जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो इसी सबसे रिलेटेड है कि हाउ ह्यूमन हैज इवॉल्व, हाउ टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व, एंड हाउ they tried to learn new things and they implemented in their life. So ये सारी चीज़ें कंपाइल होके आप ये चीज़ें बहुत इन डेप्थ जान सकते हो. So accordingly, background of food and agriculture, knowledge and हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक एज. उसके बाद इन्वेंशन ऑफ फायर आपको यहाँ से पता चलेगा. उसके बाद ब्रिक्स का फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ से पता चलेगा. कैसे किस टाइप की ब्रिक्स मिलती थी. देर आर सम ब्रिक्स विच इज नॉर्मल प्लेन, देर आर सम ब्रिक्स विच इज डिजाइंड एंड like carved. So there are different kind of bricks also you will get to know. There are different types of statues. monolithic, जो कि पर्टिकुलर एक रॉक ही में कार्व्ड आउट करके बनाए जाते थे. उसके अलावा जो है डिफरेंट गाइडलाइंस हैं जिसमें कि सही और गलत दोनों तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो दोनों दिए हुए हैं. तो वो एक ह्यूमन पर डिपेंड करता है कि यू आर ऑप्टिंग राइट प्रोसीजर और रॉन्ग प्रोसीजर. सो लेट्स स्टार्ट, and that is it is the detail of present and past also, that once you will get to know about your past, then there are assumptions you can make that yes, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं जो कि पास्ट में हुई थी तो फ्यूचर में उसके होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो हिस्ट्री हमें इस चीज़ का भी ज्ञान देती है कि अगर पास्ट में जैसे आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद आग को यूज़ कैसे करना, आग को कंट्रोल करना सीखा ह्यूमन ने. जब सबसे पहले पत्थर से टकरा के आग जो है जलाने, किस तरीके से जलाना शुरू किया. तो ऐसा भी हो सकता था ना कि हमेशा जब भी इंसान आग जलाता तो वो शायद जंगलों में आग लग सकती थी, लेकिन ह्यूमन ने आग को कंट्रोल करना शुरू किया. उसने आग का यूज जब अपना खाना बनाने के लिए करने लगा, उसके बाद प्रोटेक्शन, एनिमल से प्रोटेक्शन करने के लिए अपने घर के सामने जो फायर ऑल्टर्स होते तो उस टाइप की जो फायर ऑल्टर्स लगा के बहुत सारे जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनसे बचने के लिए, या गुफा में जैसे बहुत ज़्यादा अपने आप को ठंड से भी प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमन ने आग का
जो होता है प्रोमिनेंट यूज करना शुरू किया. So main highlight of this chapter was first of all food, how human has thought about food, clothings and food grains कहाँ से आए, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे, एंटरटेनमेंट के क्या क्या सोर्सेज थे, कॉइन्स जो मिले हैं वहाँ से उनके क्या बैकग्राउंड था, या उसके अलावा जो सील्स मिली है, मोहरे जो मिली है वहाँ से उसका हिस्ट्री क्या थी. तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर से पता चलेंगी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो कि इन चैप्टर्स में मेंशन है, और ये यूपीएससी ने यहाँ से और यूपी पीसीएस में भी और अदर स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज नर्मदा वैली, दैट इज इन एमपी. एंड we received goddess earth, the statue of goddess earth from there. Apart from this, so these are basic utilities which shows जहाँ से वहाँ से मातृ देवी की एक मूर्ति भी मिली है. एंड इससे पहले आई जस्ट वांट टू डिस्क्राइब यू कि नर्मदा वैली से जो है सबसे पहले ह्यूमन वाज अ फूड गैदरर. ओके, ही वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द बेसिक यूटिलिटीज, हाउ ही विल गैदर द फूड. एंड उसके बाद किस टाइप से उसने खाना स्टोर करता था या हंटिंग करना शुरू किया, कैसे उसने जो क्रॉप्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, हाउ ही वॉज collecting the fruits and getting and fulfilling his requirements. After that, how he has hunted the animals with different kind of weapons. So there are different evidences how weapons has evolved, and there are very like you can say this is the important site which is in MP. This is Narmada Valley, and it is Vindhya range. Once you will go to the geography region, you will get to know this is Vindhya range. यहाँ पे ही नर्मदा वैली है, और यहीं पे जो है ये एविडेंसेस मिले हैं. उसके अलावा जो है सुलेमान एंड किर्थर हिल्स जो हैं, यहाँ से एग्रीकल्चर के सबसे पहले जो एविडेंसेस मिले थे यहीं से मिले थे. उसके बाद एनिमल रियरिंग का एविडेंस भी यहीं से सबसे पहले मिला था. एंड उसके अलावा वीट एंड बार्ले के एविडेंसेस मिले हैं यहाँ से. सो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर आर्कियोलॉजिस्ट रिसीव्ड द एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर. आफ्टर दैट जस्ट गो थ्रू द अदर पार्ट, so which is mentioned here about Suleiman and Kirthar hills. And so these are few important points which you need to mention in your copies about Suleiman and Kirthar hills. So it is in Pakistan right now, and जो साइट थी वो 8000 ईयर्स एगो की साइट है. वहाँ से जो कार्बन डेटिंग से इस चीज़ का पता लगाया जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है. सो दैट्स वी विल गेट द नॉलेज के कौन सा प्लेस कितना पुराना है, वो वहाँ की जो चीज़ें मिलती हैं वहाँ से पता चलता है. उसके बाद वहाँ से आई ऑलरेडी डिस्क्राइब एनिमल डोमेस्टिकेशन के भी एविडेंसेस मिले हैं. वहाँ से एनिमल रियरिंग के एविडेंसेस मिले हैं. पीपल लिव्स इन विलेजेस, छोटे छोटे जो गाँव के पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ से उसके भी एविडेंसेस मिले हैं. उसके अलावा गारो एंड विंध्या, गारो खासी, गारो हिल्स और एंड विंध्या रेंजेस में भी इस चीज़ के एविडेंसेस मिले हैं. जहाँ से पैडी फील्ड्स जो है, कोल्डी हवा यूपी में प्लेस है, इट इज़ नियर इलाहाबाद. वहाँ से चावल सबसे पहले जो एविडेंसेस मिले थे, चावल के एविडेंसेस मिले थे वहाँ से. एंड आफ्टर दैट देर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो वहाँ से जो डिटेल्स मिली हैं, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पे इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफ़ी सारी साइट्स मिली हैं वहाँ से. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ जो एविडेंसेस मिले हैं और गंगा रीजन से जो मिले हैं. क्योंकि जो पहले क्या होता था कि जो ये सिविलाइजेशंस डेवलप हुई हैं वो वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर हम एविडेंसेस देखेंगे तो वाटर की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेवलप हुई है. चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर जो गंगा रिवर के आसपास का जो सिविलाइजेशन है वो सारे वहीं पे डेवलप हुए हैं और ह्यूमन एविडेंसेस